دیوبند میں جا کے جمع کرا دیں۔ جب ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یار آپ ہمارے جو بقایاجات ہیں یا باقی دیگر مراحت ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 منتھ کی سیلری اور صرف 17 دن یعنی کہ رات کو 17 دن جو لگے صرف 17 دن کے پیسے دیے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی مراحت دی جائے گی، وہ بھی اس صورت میں دیے جائیں گے کہ آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں گے کہ ہم اپنی ذاتی گھریلو پریشانی کی وجہ سے نوکری چھوڑ رہے ہیں اور نہ آپ مطلب اس میں یہ چیز پہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی قسم کا بقایاجات لینے کے لیے یا کسی ساتھی تنظیم کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس پہ آ جائیں گے تو ہم آپ کو 2 منتھ کی تنخواہ دیں گے، جس پہ ہم نے 14 لڑکوں نے جو برطرف کیے گئے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پہ کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے۔ ہم نے رات کو یہ جو بینر آج آپ نے اٹھائے ہوئے سب دوستوں نے ہمارے ساتھیوں نے یہی بینر ہم نے اندر نیوز روم کے اندر سیکشن کے اندر کھڑے ہو کر بینر بند کیے، ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ دروازے بھی بند کریں گے، ان کے جو پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی بند کریں گے، آپ لے کے رہیں گے۔ اور ہم نے اس میں مزید یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا جو جانچ کا دائرہ ہے وہ وسیع کریں گے، ہم پریس کلب کے سامنے بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹ کے سامنے بھی جائیں گے، ہم 0.CID جتنے ادارے ہیں سب کے سامنے جائیں گے اور یہاں پر ہم ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے اور ہمارے 14 لڑکے انشاءاللہ وہاں پہ 24 گھنٹے بیٹھے گے، ہم سے اگر مرنا پڑا ہم مرنے ہیں، کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ نقصان میں جا رہا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارا نقصان میں جا رہا ہے، ہم پیچھے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کو برطرف کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمیں نکالا ہے، کل یہ پرسوں نیوز روم کو کریں گے، پرسوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہے ہیں۔ ان کا مین مقصد یہ ہے تاکہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہو، اپنا حق نہ مانگیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے 12 سال کا آپ ریکارڈ نکال دیں، بارات میرے پاس گھر میں ڈیلی آتی ہے، موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بند کیا ہے، اشتراک بند کیے ہیں، فنڈ بند کیے ہیں۔ اب روزنامہ ایکسپریس کے پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس نکال کے دیکھیں، ایکسپریس اسلام آباد کا اسٹیشن، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں پیش بھی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف پرائیویٹ بزنس کیا، تمام خرچے نکال کے 35 سے 40 کروڑ سے اسلام آباد اسٹیشن نے بچت کی ہے ہر مہینے، اور یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے، آپ ہماری گھریلو پریشانیاں شو کر کے آپ استعفیٰ دیں، ہم ہرگز استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم یہاں پہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ورکر اتحاد زندہ باد، ورکر اتحاد زندہ باد۔ سہیل انجم صاحب، آپ کے جذبے کو سلام، اور آپ یاد رکھیے کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اپنے قائد افضل بٹ کی قیادت میں جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اسے مرنے نہیں دیتی۔ یہاں سے لوگ دم دبا کے بھاگ جائیں گے جو آپ کا حقوق غصب کرنے کے لیے ہیں، اور آپ کو میں ابھی بتاؤں، میں ادھر پہنچا ہوں تو PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب نے آتے ہی مجھے ہدایت کی ہے کہ RIUJ ان کا فوری طور پر کل جا کے اسٹے لے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو۔ میں گزارش کروں گا جناب بشیر عثمانی صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے RIUJ کے پریس کلب کے ہر جگہ پر جناب موجود، جناب بشیر عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی دشواریوں سے زندگی بنتی ہے انسان کی، انہی دشواریوں سے زندگی بنتی ہے انسان کی، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ قائد صحافت جناب افضل بٹ صاحب، جناب مبارک زیب صاحب، علی رضا علوی صاحب اور میرے بھائیوں، آج ہم جس مقام پر ایک مرتبہ پھر جمع ہیں، جس طرح علوی صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہم پہلے ایک مرتبہ یہاں ایکسپریس کے ایک صحافی کے قتل پر یہاں جمع ہوئے تھے، اور آج معاشی قتل کے حوالے سے جو کہ ملک بھر کے اندر اس وقت موجودہ حکومت کے اندر جو سب سے بڑا اگر زوال معاشی ہے تو وہ میڈیا ورکر کے اوپر معاشی زوال آیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی اور مالکان سے
मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग करके उनको मुतमईन करने की कोशिश की, उनके मुतालबात माने, लेकिन अगर कोई बात नहीं मानी गई तो वर्कर की बात नहीं मानी गई। ना सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी, ना हुकूमत ने हमारी बात मानी, और ना नाम नहाद ये जो हमारी मालिकान जो हमारी वर्कर के खून पसीने के ऊपर मोहल्लात तामीर करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए शर्म का मकाम है कि उस वर्कर को जिसकी तनख्वाह 35,000 है, 40,000 है या 50,000 है वो वर्कर लेता है, और उसको अगर 14 की तादाद में यहाँ मौजूद वर्कर को ये कहा जाए कि आप 5 बजे से पहले अपने इस्तीफे लिख दें, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े सेठ को, इतने बड़े मालिक को जो दावा करता था कि मैंने इस अखबार के चलाने के बाद, इस टीवी चैनल के चलाने के बाद मेरे सज्जाद इसमें बन चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि डूब भरने का मकाम है सेठ के लिए। और याद रखिए कि एक ताकत अल्लाह ताला की मौजूद है। आप इन वर्कर को, इनके इन जज्बात को अगर मजरू करेंगे, इनको अगर इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आप आने पे मजबूर करेंगे, तो वो खुदा की जात आपको ऊपर से नीचे गिरा सकती है। आपको भी अपने मुतालबात के लिए इन्हीं सड़कों पे आना पड़ेगा। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश करूंगा जमान मुगल साहब से कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। जनाब जमान मुगल साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा अलवी साहब की सारी क़यादत मौजूद है और मेरा वक्त में क्या यहाँ एक्सप्रेस के दोस्तों को मैं बताऊं कि आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमारे लंदन से आए हुए दोस्त जनाब अरशद रजियाल साहब जो प्रेस क्लब यूके के सदर हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं, वो मौजूद हैं। एक तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। जनाब अरशद रजियाल पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस वक्त बड़ा तेज से आगे बढ़ रहा और वर्कर की बहुत तेजी हो रही है, लेकिन ये जो अब नया सिलसिला शुरू हुआ है और मीडिया की तो इससे ना सिर्फ जहाँ बल्कि अवर सारे साथी वो भी बहुत परेशान हैं। और हम यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उनके शाना बिशाना अवर से साथी जो है उनके शाना बिशाना खड़े हैं और शायद के और हर काल पर आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा RIUJ के सीनियर नायब सदर जनाब नासिर हाशमी साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। जनाब नासिर हाशमी साहब। अगर तो ये वाकई सच कह रहे हैं तो फिर हमारी जंग हुकूमत के साथ है, लेकिन अगर ये गलत है तो फिर जितने भी मीडिया के जो चैनल्स हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने बहुत से बिजनेस यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं, अखबारात के अलावा भी ये जहाँ भी जाते हैं इनके माइक ना लगने दें, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, क्योंकि जो हमारे भाई हैं इनके साथ जो हो रहा है, इनके घर के चूल्हे बंद कर रहे हैं, ये अपने एंकर्स की तनख्वाहें क्यों नहीं आदी करते, ये अपने बजट को क्यों नहीं कम करते, सारा मसला हमारे भाइयों को क्यों डालते हैं। तो हम इनके साथ छाना बछाना खड़े हैं, ये जुल्म और ज्यादती नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह बट सब जो आपकी कॉल होगी उसमें आगे खड़े होंगे और इंशाल्लाह इनका हक दिला के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा अपने के चेयरमैन जनाब लुकमान शाह साहब से कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। जनाब लुकमान शाह साहब।
जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूँगा। बट साहब से ये गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट से मिले, ये जहाँ जहाँ से स्टेशन बंद कर रहे हैं, अखबारात इनका मीडिया बंद करवाएं। ये इश्तिहारात यहाँ से लेंगे, अयाशियाँ अपनी जारी रखेंगे, लेकिन वर्करों का माशी खत्म करेंगे। ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कोई इनके बजट में फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। एक्सप्रेस अरबों रुपए कमा रहा है यहाँ से इस्लामाबाद से, और सिर्फ 10-12,000 15,000 वाले वर्करों को फारग कर रहा है। बाकी कोई दोस्त रिजाइन ना दे। हम सोमवार वाले दिन से ITNE में सुबह 8 बजे से बैठे होंगे। जो दोस्त आएगा उसे स्टे मिलेगा, इंशाल्लाह हम स्टे लेके देंगे, उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे हर अदालती फोरम में। बहुत शुक्रिया। और एक्सप्रेस के पूरे ग्रुप के दोस्तों, ये बार बार साथ साथ मैं आपको बावर इसलिए भी करवा रहा हूँ कि आपका इत्तेहाद भी बहुत ज़रूरी है, और आपको ये निगाह भी करनी होगी कि आपके हकूक़ का जो है नगेबान कौन है और आपके हकूक़ का कातिल कौन है। आपके घर में चूल्हे बुझाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है और आपके घर में चूल्हे जलाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है। और आप पे ऊपर जब भी पूरे इस शहर की मीडिया इंडस्ट्री पे, मीडिया वर्कर पे, जर्नलिस्ट पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो अमलन काम कौन करता है और फेसबुक पे नौसरबाजियाँ कौन करता है। ये अब अक्ल और शऊर की बुनियाद पर इन बातों को जांचने की, परखने की और सोचने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा काशिफ रफ़ीक साहब से कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। काशिफ रफ़ीक साहब। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे काल इकट्ठी होने की, हम उस काल के ऊपर लंबा करके यहाँ पे आ गए, लेकिन इस काल को, इस एहतियाज को इब्तदा समझिएगा, इसको इंतहा न समझिएगा। मैं एक्सप्रेस के उन तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ जो ये समझ रहे हैं कि न्यूज़ रूम के लोगों की नौकरियाँ चली गई, हमारी बच गई। याद रखिएगा कि आज काम शुरू हुआ है, कल जब में आप भी आ सकते हैं। अगर आज आप मालकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे और उनके खातिर खड़े होंगे और वर्करों के सामने खड़े होंगे, तो याद रखिएगा कल आपके सामने, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इन मालकान से पूछिए, इन्होंने इस इदारे के सर पे वो F9 पार्क में मैकडॉनल्ड की इतनी जगह कैसे ले ली, बताएं। इन्होंने कहाँ गेस्ट हाउस अलाट करवाए, बताएं वो कि कहाँ सब्सिडीज ली, और ये भी बताएं कि यहाँ से आप न्यूज़ बंद करने के बाद डमी पेपर छाप के इश्तिहारात कहाँ से लेंगे। ये भी बताइए कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हर कोई फैसला क़यादत करेगी कि अगर यहाँ पे हमारे वर्कर्स का माशी कत्ल होगा तो याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड सेल नहीं चलने देंगे। याद रखिएगा आपके लिबर्टी पेपर की मिलें नहीं चलने देंगे। आपकी हर उस बिजनेस पॉइंट के बाहर बैठेंगे, हम जितनी भी कैपेसिटी रखते हुए हम रोकेंगे इस चीज़ को कि जिस इदारे के सर पे बैठ के आपने करोड़ों अरबों के एहसासे बनाए, आज उस इदारे को बंद करके उन वर्करों को कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दें। कोई बंदा इस्तीफ़ा ना दे, कोई वर्कर इस्तीफ़ा ना दे, ये करे जो कर सकते हैं, हम इन्हें बताएंगे कि वर्कर क्या कर सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के नवमुंतखब नायब सदर जनाब राजा खलील साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। राजा खलील साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये ग्रुप जिसको लाखानी ग्रुप कहते हैं, आज हम सब के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई नई बात नहीं है कि इसने वर्कर दुश्मनी का सबूत दिया है। आप इस ग्रुप की तारीख उठाकर देखें, इसने माजी में भी हुकूमतों से साज़बाज करके वर्कर दुश्मनी का सबूत दिया। इन्होंने उन तमाम अदारों में वो तमाम अदारे खरीदे जिसको माजी की हुकूमतों ने नीलाम किया या जिनकी निजकारी की। ठीक है, आप एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस जरूर बनाएं, आप एक कारोबार से दूसरा कारोबार जरूर बनाएं, लेकिन हम ये आपको वार्निंग देना चाहते हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि आप हुकूमत के नीचे छुपकर वर्कर दुश्मनी और मीडिया के ऊपर वार न करें और 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के मुलाजमीन को तंग न करें। अगर ऐसा किया गया तो मेरे दोस्तों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम आपके तमाम उन काले करतूतों को इस पाकिस्तानी अवाम के सामने लेकर आएंगे जो आपने माजी में भी किए।
हम एक्सप्रेस के दोस्तों से कहते हैं कि हम आपकी आवाज बनकर PFUJ के सदर अफजल भट्ट की क़यादत में आपके हकूक की जंग लड़ेंगे और हर वो एहतजाज करेंगे जो हम कर सके। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा, हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, हम आपके काले करतूत पे नकाब भी करेंगे और आपकी आंखों में आंखें डालकर वर्कर के हकूक के लिए बात करते रहेंगे। हम जनाब अफजल भट्ट साहब, मुबारक ज़ेब साहब और इनकी जुमला क़यादत से कहते हैं कि इस तहरीक को इतना मुअस्सर बनाया जाए कि ये मीडिया मालकान जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के नीचे छुपते हैं, कभी ये हुकूमत के नीचे छुपकर हम वर्कर्स पर वार करते हैं, इनके बिजनेस को तूल देने के लिए इन्हीं लोगों का हाथ है, इन्हीं लोगों ने पसीना बहाया है और जब ये मजबूत हुए तो अपने वर्करों पर वार करते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम वर्कर के साथ खड़े होंगे और उनके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं गुजारिश करूंगा मेंबर FPC PFUJ जनाब नासिर ज़ैदी साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। जनाब नासिर ज़ैदी साहब। आज पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ बालकान उन तमाम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं जिन्होंने इनके अदारों को बनाया, दूसरी तरफ हुकूमत है जो बेहिस है, जिसने मीडिया इंडस्ट्री को तबाह किया है। तीसरी तरफ वो क़ुव्वतें हैं जो आज़ादी सहाफ़त को पनपने नहीं देना चाहती। PFUJ उन तमाम क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और हम समझते हैं कि प्रेस की आज़ादी, वर्कर्स के माशी हकूक़ और वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी जो है वो हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी से अपने आप को किसी सूरत में सरफ़ नज़र नहीं करेंगे और हम उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम अदारों को, उन तमाम कारकुनों को जो अदारों से निकाले गए हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा माजी में भी वर्कर्स के रोज़गार के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं और इंशाअल्लाह हम ये आपसे अहद करते हैं एक्सप्रेस के दोस्तों से कि हम आपके साथ हैं, आपकी जदोजहद में आपके साथ होंगे और यकीनन वो तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे जो हमें आपकी रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होंगे। हम अदालतों में भी जाएंगे, हम मुज़ाहरे भी करेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे और हम पार्लियामेंट के सामने भी खड़े होंगे। यकीनन मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है सर पे कफन बांध लेना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हमारे दोस्तों के, हमारे साथियों के माशी कत्लेआम को नहीं रोका जा सकता तो हमारी यूनियनों का, हमारी PFUJ का कोई फ़ायदा नहीं है। हम PFUJ के दोस्त, हम PFUJ के रहनुमा अफजल भट्ट साहब और तमाम साथी जो है वो एक्सप्रेस के दोस्तों के साथ ये अहद करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर कुर्बानी देंगे और आपको आपके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, घोड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है, दौर में देखो जिंदा है, जबर के आके जिंदा है, ये देखो जिंदा है, अयूब ने देखो जिंदा है, शरफूर ने देखो जिंदा है, गाने ने देखो जिंदा है, अब तुम भी सुन लो जिंदा है, अब तुम भी सुन लो जिंदा है, अब तुम भी सुन लो जिंदा है। अब मैं गुजारिश करूंगा नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी
जनाब अनवर रजा साहब से कि वो इजहार ख्याल करें। जनाब अनवर रजा साहब। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। साफियों का माशी कत्ल बंद करो, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, चैनल से छांटियां बंद करो, चैनल से छांटियां बंद करो, बरात से छांटियां बंद करो, बरात से छांटियां बंद करो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब और यूके के प्रेस क्लब के सदर शहजाद साहब, अरशद साहब, RUJ के सदर मुबारक ज़ेब साहब, सेक्रेटरी अली रज़ा अलवी साहब, नासिर ज़ैदी साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम साथियों, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप PFUJ की कॉल पर यहाँ मौजूद हैं। बिलखुसूस मैं सलाम और उनकी जुरत को सलाम पेश करता हूँ सुहेल अंजुम साहब और उनके साथियों और उनके तमाम साथियों की, क्योंकि हमने देखा है माजी में कि अगर किसी एक शख्स को, एक वर्कर को निकाला जाता है तो बाकी तमाम वर्कर्स खामोश रहते हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आज एक वर्कर को निकाला जा रहा है, कल दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की बारी आएगी। मैं आपको ये बताऊं कि क्या सुल्तान लाखानी साहब के पास कोई दौलत की कमी है? हरगिज़ नहीं। सिर्फ वो मालकान इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। मालकान वर्कर्स की आड़ में हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। मालकान चाहते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इजाफा हो और वर्कर्स को उनको इसलिए मजबूर किया जा रहा है, उनको इसलिए निकाला जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाया जाए कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम बड़ी मुश्किल से इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है। और हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस बात को बिल्कुल मंजर आम पर लाएंगे और मैं इसका चशमदीद गवाह भी हूँ और मेरे पास सबूत भी हैं कि लाखानी साहब ने पिंडी में एक जगह जहाँ पर वो मैकडोनल्ड बनाना चाहते थे, उस मजहबी जगह पर कब्जा करने के लिए इन वर्कर्स को इस्तेमाल किया। और आज उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने एहसासे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वर्कर का चूल्हा बंद कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि सुल्तान लाखानी साहब के पास पैसे नहीं है? सिर्फ वो चाहते हैं कि हुकूमत को वर्कर की आड़ में ब्लैकमेल किया जाए, उनके इश्तेहारात में इजाफा किया जाए ताकि वर्कर की आड़ में वो अपने जो एहसासे हैं उनको बढ़ा सकें। मैं अपने यहाँ पर मौजूद तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हम नारे लगाते हैं कि वर्कर इत्तेहाद जिंदाबाद, आप लोगों को इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। बिलाशुबा के एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग मौजूद हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हो। PFUJ की क़यादत में, RUJ की क़यादत में हमें आईनी और कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी और हम यकीनन लड़ेंगे। और मैं अपने तमाम दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब का जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए हाजिर है। यहाँ पर आपने भूख हड़ताली कैंप की बात की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद रहूँगा। आप 24 घंटे बैठे हैं तो मैं भी 24 घंटे बैठूंगा। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि सड़कों पर आना। हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी एक तहरीक चलाई थी और हम अब भी तहरीक चलाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे वर्कर के हकूक़ के लिए अगर किसी ने कोई हकूक़ पर डाका डाला तो हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हम पार्लियामेंट के सामने, सड़कों पर और आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ITN नहीं जाएंगे। जहाँ तक हो सका हम आपके हकूक़ की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों का। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा RUJ के सदर जनाब मुबारक ज़ेब साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। जनाब मुबारक ज़ेब साहब। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, साफियों का माशी कत्ल बंद करो। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, छांटियों के खिलाफ तेज हो, तेज हो, छांटियों के खिलाफ सेठों के खिलाफ, सेठों के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 माह से कि ये जो मीडिया के मालिकान हैं
ये जिस तरीके से हमारे दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी नौकरियों से फारिग कर दिए जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें रोके जा रहे हैं, ये अलमिया तारीख़ में पहली मर्तबा देखा जा रहा है और ये एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये मालिकान ये 1960, 1970 और 1980 के मालिकान नहीं है, जब उस ज़माने के मालिकान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो न्यूज़ प्रिंट ख़रीद सकते थे, वो उधार भी लेते थे। लेकिन उन लोगों के जहनों में जो जज्बा था वो प्रोफेशन का जज्बा था, उनका जज्बा जो था वो मैसेज का था, वो ख़बर का था। उनका जज्बा ये नहीं था कि वो अपने एक कारोबार से और कारोबार बनाएं और कारोबारों को धूल देते जाएं। दोस्तों, ये जो मीडिया इंडस्ट्री बन गई है, इस इंडस्ट्री का अलमिया ये बन चुका है कि इस इंडस्ट्री के आड़ में ये हमारे वर्करों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त ने अभी कहा कि पिंडी में जब ये एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे थे तो उन्होंने हमारे कंधे इस्तेमाल किए। आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब इन मीडिया हाउसेस के ऑडिट हो गए कि ये टैक्स नहीं देते तो फिर भी इन लोगों ने हमें फ्रंट पे रखा। लेकिन अब इनके मुनाफा अगर 5% कम हो रहा है तो ये वो मुनाफा वो जो 5% कम हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। यानी नुकसान नहीं हो रहा, मुनाफा में थोड़ा सा कमी आ रही है, तो उस मुनाफे की कमी को हमारे लोगों के जरिए उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं और हम मौजूदा हुकूमत से भी ये डिमांड करते हैं कि ये जो मीडिया टाइकून्स बन चुके हैं, ये जो मीडिया ओनर्स हैं, इन्होंने जो मीडिया के नाम पे मुख्तलिफ शक्लों में जो सब्सिडीज ली है, चाहे वो प्लाटों के शक्ल में, चाहे वो इम्पोर्ट मशीनरी की ड्यूटी वेवर्स के शक्ल में, चाहे इनको 5% जो रेगुलेटरी ड्यूटी इसी गवर्नमेंट ने वेव कराई, यानी इन्होंने ख़त्म कराई, वो मुनाफा और इसके अलावा बहुत सारे जो मुनाफे इन लोगों को दिए जा रहे हैं, उन मुनाफों का भी इन इदारों का ऑडिट करवाया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सेठ, यही मालिकान उन मुनाफा को लेकर मैकडॉनल्ड्स बना रहे हैं, उन्हीं मुनाफा को लेकर और बिजनेसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनका भी ऑडिट होना चाहिए कि जो हमारे नाम पे सब्सिडी लेकर अपने बिजनेसेस के बना रहे हैं। दोस्तों, अब हमें अपने कन्वेंशनल जो हमारा तरीका है इससे थोड़ा सा हमें आगे निकलना होगा, इससे एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि हम ये जंग जो है इसी तरह नहीं जीती जाएगी। अब हमें ये एहसास हो रहा है कि इन लोगों को कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है। कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि हम तो आपके एरियर्स में रिलीज करा रहे हैं, आपको आखिर हुआ क्या कि आप इन वर्करों को फारिग कर रहे हैं। आपके तो हम एडवर्टीजमेंट के पैसे भी आपके 2 इंस्टॉलमेंट हमने दे दिए, फिर क्या वजह है कि आप मीडिया के वर्कर्स को फारिग कर रहे हैं। तो वाकई ये बात अब ये लोग आराम से नहीं सुनेंगे, इनको आराम से समझ नहीं आएंगे, बल्कि हम उन बिजनेसेस के तरफ जाएंगे, हम उन कारोबार के तरफ जाएंगे, उनके गेटों पे बैठेंगे, वहाँ लोगों के एंट्री बंद करेंगे और इनको दिखाएंगे कि नुकसान क्या चीज़ है। जब एक दिन हम उसके उन बिजनेसेस को बंद करेंगे तो इनको एहसास होगा कि वाकई नुकसान क्या होता है। दोस्तों, मैं आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे ये जो डिसयूनिटी है, ये जो हम आपस में बट गए हैं, ये जो ज़ात और मामूली अना की वजह से हम बटे हुए हैं, और जब भी हम इन मालिकान के ख़िलाफ़ एक पोजीशन लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और एक पोजीशन लेके बोल जाते हैं, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है हमारे कुछ साथी
जाके हमारे उस पूरी मेहनत को वो उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। दोस्तों, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा माशी कत्ल हो रहा है, ये हमें एहसास होना चाहिए। आज अगर हमारी एक्सप्रेस ग्रुप के ये दोस्त फारिग हो रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती फारिग करवाया जा रहा है, और ये जो गैर इंसानी तरीके से फारिग कर रहे हैं कि आप जो है अपना घरेलू बहाना बना के रिजाइन दे रहे, ये शर्म की बात है, ये बिल्कुल शर्म की बात है। ये हमें इन लोगों को एक्सपोज करना होगा, इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा। और आखिर में मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे अंदर यूनिटी होना चाहिए। जब हम कॉल देते हैं, हमें सब काम छोड़ के निकलना चाहिए। आज हमारे अगर एक्सप्रेस का वर्कर फारिग हो रहा है, कल मैं भी फारिग होगा, कल मेरा दूसरा दोस्त भी फारिग होगा, कल हमारा तीसरा दोस्त भी फारिग होगा। और ये जो सेठ है, इन्होंने अपने मुनाफे में कमी नहीं करना, इनको हम रियलाइज करेंगे कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे। आपने जो ये बिल्डिंग बनाए हैं, ये हमारे खून पसीने से बनाए हैं, हम इनको आपको इस तरह हड़प करने नहीं देंगे, हजम करने नहीं देंगे। हमारे बच्चों का जो हक है वो आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे हम जबरदस्ती लेंगे। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, साफी का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद से चांटिया बंद करो, से चांटिया बंद करो, से चांटिया बंद करो, से चांटिया बंद करो, जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, मरना 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 होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, कदम बढ़ाओ, अंदर बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, अंदर बढ़। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब को कि वो इजहार ख्याल करें, लेकिन इस बात के साथ और इस वादे के साथ कि आप जो भी कॉल देंगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपकी हिदायत के मुताबिक इस लड़ाई को जहां तक लेके जाना है, और वहां तक तो लेके जाना है जहां तक लोगों के हकूक को महफूज किया जा सके। हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। जनाब अफजल भट्ट साहब। जिंदा है सहाबी, जिंदा है सहाबी, जिंदा है सहाबी, जेलों में जाके कोड़े भी खाके, इस मुल्क की खातिर, इस आइन की खातिर, हर दौर में देखो, अजमर के आगे जैया ने देखा, अयूब ने देखा, शरफू ने देखा, खाने ने देखा। अब तुम भी सुन लो, अब तुम भी सुन लो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट। हम तुम्हारे साथ। पहले सारे दोस्तों कहेंगे एक जगह सारे इकट्ठे हो, साइडों से भी तांगे सारे पीछे, सारे आप पीछे आ जाओ, ये जगह कवर कर ले, सेंटर हो जाएगा सही। क्यों यार है सब नहीं हो लंबा है। तमाम दोस्तों का PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब, जो जितने हमारे साथी यहाँ पे हमारे साथ ज़्यादा यकजहती की तशरीफ लाए, उनका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दो चीज़ें, मैं मेरा नाम मंजू यासीन है और मैं पिछला 12 साल से रोज़ाना एक्सप्रेस से वाबस्ता हूँ। तो मैं एक दो चीज़ें चीज़ें भूल गया था, जो चीज़ें बरसों में न्यूज़ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमें जब रात को इन्होंने कॉल की, रात के तकरीबन 8:30 बजे इन्होंने फ़ोन करके हमें ये कहा कि आप आज 5 बजे तक अपना इस्तीफ़ा जो है जमा कर दें, वो भी अपनी घरेलू परेशानियाँ ज़ाहिर करके, ताकि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। उस पर उन्होंने यह काम में ऑफर दी थी कि आपको 2 मंथ की तनख्वाह और जो 17 दिन आपके लगे हुए हैं, ये हम आपको पैसे दे देंगे, वो भी यकमुश्त अदायगी नहीं देंगे, वो भी इस तरह देंगे कि 17 दिन के आप अभी ले लें पैसे, फिर 1 मंथ के अगले मंथ, मतलब मंथ टू मंथ जिस तरह सैलरी आती है उस तरह देंगे। उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि बाद में ये देंगे या नहीं देंगे। दूसरा, इन्होंने हमें कल ये कहा
واضح طور پر انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا جو انتظامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہ آپ لوگ اگر عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں آپ بے شک جائیں, وہاں پہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا, معاملہ لٹک جائے گا 5-6 سال. جہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ وقتی آپ وہ ہماری مطلب کہ جو مشکلات ہیں ان سے ان کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں 2 مہینے کی سیلری آپ لے لیں اور آپ عدالتوں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو 6-7 سال 8 سال بھی لگ سکتے ہیں کیسوں میں, وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمیں مطلب ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. کبھی انتظامیہ کون سا بندہ ہمیں فون کرتا ہے, کبھی کون سا کہتا ہے, کبھی کون سا بندہ کرتا ہے, کوئی کہتا ہے آپ بے شک احتجاج کر لیں, جو کچھ مرضی کریں. یہ ہمارا اس سے پہلے ہم نے کہیں احتجاج دیکھے, ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ لاوارث لوگ ہیں, یہ لفظ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے ورکروں کا معاشی قتل بند کرو, ورکروں کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو, معاشی قتل بند کرو, بند ورکروں کرو, کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو. جینا ہوگا مرنا ہوگا, لڑنا ہوگا, لڑنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, لڑنا ہوگا, لڑنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, لڑنا ہوگا, لڑنا ہوگا. ہمیں انڈائریکٹلی بلیک میل کیا جا رہا ہے فون کر کے. ہمیں جو ہمارے جو بوسز ہیں ان کی طرف سے ہمیں صبح سے یہ مطلب مختلف طریقوں سے آفس کے لوگوں سے جو دوسرے اسٹیشن سے ان کی طرف سے فون کروایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے. جو ہمارے دیگر اسٹیشنز کے دوستوں کو جو فارغ کیا گیا ہے ان سے بھی انہوں نے یہی, لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسٹاف تھوڑا تھا, 1-2 بندے وہاں پہ کام کر رہے تھے کیونکہ باقی پیجی سارے یہاں سے تیار ہو کے جا رہے تھے. تو وہ ہمیں اس طرح مطلب مختلف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں یہ عمل کریں تاکہ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا جا سکے. اور دوسرا یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم صورتحال کر کے آج جب ہم رات کو تقریباً 2:30 بجے ہم بیٹھ کے ہم سب دوستوں نے جو ہم 14 لڑکے جنہیں نوکری سے برخاست کیا گیا ہے انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ ہم ایکسپریس کے باہر یہاں پارکنگ میں انشاءاللہ جب تک ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہم بیٹھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ جو بھی ہماری مدد کرنے آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. آپ بٹ صاحب ہمیں لایا عمل بتائیں یہاں پر کہ ہم لوگوں کو مزید آگے کیا کرنا چاہیے, آئی ٹی نہیں جانا چاہیے, عدالت جانا چاہیے. آپ ہمیں بہتر گائیڈ سے کر سکتے ہیں اور ہم اسی چیز کے منتظر ہیں کہ آپ ہمیں کیا لائے عمل دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں, یہ سینچری گروپ آف کمپنیز جو کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کی سینچری پوری ہو چکی ہے, ہمارے کارخانوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے. آج جس شرمناک انداز میں انہوں نے اپنے پڑھے لکھے ملازمین کو ڈیل کیا, خواہ وہ ٹی وی چینل سے تعلق رکھتے ہیں, خواہ ایکسپریس ٹریبیون سے تعلق رکھتے ہیں, خواہ روزنامہ ایکسپریس سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے زیادہ شرمناک صورتحال کسی اور جگہ دیکھنے میں نہیں آئی. عزیز دوستو, حالات کے سامنے کس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے شکار ہوتے جائیں. کل جنگ نے شکار کیا تھا, آج ایکسپریس نے کیا, کل ڈان کرے گا, پھر نوائے وقت کرے گا. پہلے جب جنگ کے 600 لوگ نکالے گئے تو پورا شہر سکون میں تھا کہ ٹھیک ہے ان کا چولہا بجھ رہا ہے, ہمارا جل رہا ہے. آج پھر وقت ٹی وی بند ہوا تو دوسرے اداروں والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو عتاب کا شکار ہو گئے, ہم محفوظ ہیں. آج ایکسپریس کی باری آئی ہے, اگر دوسرے اداروں والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, انہیں غلط فہمی سے نکلنا ہوگا. تمام ورکرز کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو بحران ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت میڈیا انڈسٹری پر مسلط کیا گیا ہے. کیونکہ یہ کوئی زلزلہ یا سیلاب نہیں تھا کہ مالکان سوئے ہوئے تھے,
इस्टेब्लिशमेंट सोई हुई थी, अदालतें सोई हुई थी, हुकूमत सोई हुई थी। अचानक ज़ल्ज़ला आया या सैलाब आया और उसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को अपनी लपेट में लिया। और कैजुअलिटी किसकी हुई? सिर्फ वर्कर की। मालकान की याचियां उसी तरह जारी है, जो डायरेक्टर साहबान हैं उनकी याचियां उसी तरह जारी है, जो लाखों करोड़ों में खेलने वाले हैं उनकी याचियां उसी तरह जारी है। अगर किताब आया है, अजाब आया है, तो हम जैसे उन वर्कर्स पर जो चंद हजार तनख्वाह लेकर अपना और अपने बच्चों का चूल्हा जलाते हैं, पेट पालते हैं, तालीम का सिलसिला जारी रखते हैं, इसमें हमारा कसूर क्या है कि हम देखते रहे कि उसकी बारी है, उसकी बारी है, उसकी बारी है। अगर हम में ये जज्बा होता कि अगर जंग की बारी है, हम उस बारी को अपनी बारी समझते, हम जंग के बाहर खड़े होते। जिस तरह RIUJ ने वहां भूख हड़ताली कैंप लगाया, पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के दोस्तों को वहां मौजूद होना चाहिए था। जब RIUJ ने जियो के बाहर कैंप लगाया तो पूरी कम्युनिटी को वहां मौजूद होना चाहिए था। उसका एक मैसेज जाता, मालकान समझ आते कि ये सिर्फ जंग का मसला नहीं है, मैंने हाथ लगाया तो मेरे साथ रिएक्शन इससे भी बुरा होगा। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। आज ही फैसला कर ले कि क्या हमने सिसक कर मरना है या अपना हक लेने के लिए लड़ना है। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आप पर मुसल्लत किया जा चुका है, जिससे हमें सिर्फ एक मज़ाहमत बचा सकती है, एक लड़ने की आरज़ू बचा सकती है, ये फुटपाथ बचा सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने वाला फुटपाथ बचा सकता है। दफ्तरों में बैठकर अपने रोजगार को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए अजीज दोस्तों, बेंजामिन यासीन साहब और इनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर मैंने मज़ाहमत की तो शायद मेरे रोजगार के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम अल्लाह ताला की बजाय सेठ को ज्यादा बाख्तियार समझते हैं कि अगर एक इदारे ने बंद किया तो शायद दूसरा इदारा भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जिस तरह हमने अल्लाह ताला की जात पे तवक्कल कर लिया, अपनी स्ट्रगल को अपने ईमान का हिस्सा बना लिया, तो ये कोई सेठ हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तेज 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 तेज। एक तो मेरा दिल कर रहा है कि आज आपके मालिक का चैलेंज कबूल करूं, जो कहता है कि जद्दोजहद से कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कर रहा है कि अभी ताला लगवाऊं और बाहर गेट पे लगाकर अब खड़े हो जाए। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ। लखानी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लखानी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लखानी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और ताला लगाकर हम खड़े हों। हम देखते हैं कि आज टीवी चैनल पे गेस्ट किस रास्ते से अंदर जाते हैं, किस रास्ते से बाहर जाते हैं, या कौन सी इसके पास ताकत है कि हमारा लगा हुआ ताला कोई पुलिस खोले, कोई फौज खोले, कोई हुकूमत खोले, कोई आकर खोल के दिखाए। जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जिंदा है सहाबी, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, घोड़े भी खाके, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस आइन की खातिर, जिंदा है, दौर में देखो, जिंदा है, अजबर के आगे, जिंदा है, जैया ने देखो, जिंदा है, अयूब ने देखो, जिंदा है, काले ने देखो, जिंदा है, शरफू ने देखो, जिंदा है। अब तुम भी सुन लो, जिंदा है, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। और अगर आप इससे बड़ा भी कोई देखना चाहते हो, अगर हम आप में कोई जोम है, आपकी गर्दन में कोई सरिया है, आप अपने आप को खुदा से बड़ी ताकत समझते हो, तो जो बात मुबारक ज़ेब अनवर रज़ा ने की है वो करके देख लेते हैं।
हम अनाउंस कर देते हैं कि शाम 5 बजे आज मैकडोनल्ड पे ताला लगाएंगे। भेजे कौन खोलेगा उस ताले को? कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हम आपको आज भी ये मशवरा देते हैं कि ये सारे काम हम आज भी कर सकते थे, कल भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आज एक वार्निंग दे रहे हैं। हम तालाबंदी तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि किसी इदारे को तो ताला लगाने का नुकसान हम समझते हैं, लेकिन जब आप हमारी इज्तनफ्स से खेलोगे, जब वर्कर की हकूक पे डाका डालोगे, तो फिर हमारे पास भी तमाम ऑप्शन खुले हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, अभी आज हम डिसाइड करेंगे, जो दोस्त हैं ये भी बैठेंगे, RIJ प्रेस क्लब की क़यादत यहाँ मौजूद है, जो स्ट्रगल के पे यकीन रखती है, वो बैठेगी, PFJ के सीनियर लोग मौजूद हैं कि हमने ये बात ठीक है कि ये आज आगाज है, इसको मरहलावार किस तरह आगे बढ़ाना है, कि हमने कौन सी अदालत का दरवाज़ा नॉक करना है, क्या आपने यहीं बैठना है, या हम अगली कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर की देनी है, यहाँ यही मुश्किल एक कैंप करना है। अभी हम इस प्रोग्राम के बाद बैठते हैं, इधर ही फुटपाथ में बैठेंगे। अब ये फैसले इधर इसके सामने फुटपाथ पर भी इंशाअल्लाह ताला होंगे, जो सब दोस्तों की राय होगी उसके मुताबिक फैसला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे ये साथी बहाल नहीं होते, और जिन पर तलवार लटक रही है, हमारे एक्सप्रेस के वो दोस्त जिन पर तलवार लटकाकर सिर्फ उन्हें खामोश रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब ये लोग चले जाएंगे फिर वो तलवार नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर उनकी गर्दन काटेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला तलवार को उधर तक भी नहीं पहुंचने देंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने वर्कर के लिए हमें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इस इदारे के अंदर, इस इदारे के बाहर, और लखानी ग्रुप के तमाम जितने इदारे हैं उनके अंदर और बाहर जितनी जंग लड़ी, इंशाअल्लाह ताला हम ROG की क़यादत में वो जंग जारी भी रखेंगे, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, कि जब कॉल आए तो उस दिन अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ये रूटीन की कॉल नहीं है। हम 5 माह से आपसे कह रहे थे कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पर जो अज़ाब मुसल्लत किया जा रहा है, ये कोई मरूजी हालात नहीं है, ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसका मुकाबला करने के लिए तमाम लोगों को अपने घरों से निकलना होगा, लड़ने के लिए सड़कों पर आना होगा, और सर पर कफन बांधना होगा। हम हमेशा की तरह आपके साथ थे, हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और कायदीन से गुजारिश है कि फुटपाथ सब पे दोस्त आ आ जाएं। जाएं। और सब जो लोग जिनके पास टाइम है वो भी आ जाएं, अगर किसी को जल्दी नहीं है तो। ये पकड़ो मुफ्ती साहब, ये आपके पास